My dear students, let us write on writing. Let us write on writing. Today our topic is about writing, especially academic writing. So, whatever you write as a student in examination hall, essay writing, précis writing, that is academic writing basically. Now, what is simple writing? Simple writing is recognition of the symbols, while academic writing is evidence-based writing. So please make a comment that academic writing is evidence-based presentation. Please make a comment, everybody. Academic writing is evidence-based presentation. Evidence-based presentation. Everybody should write this comment, because you are learning writing, so write. Because writing is a skill, and skill is learned by doing. Skill is learned by doing. Skill is that level of expertise whose success is 100% guaranteed. When you are skillful, so your success will be 100% guaranteed. A successful person is always skillful. A skillful person is always successful. A skillful person never fails. This is why there is a difference between knowledge and skill. So writing is skill, so you have to write, to learn writing. So please make a comment. Let me refresh my system. I don't see your comments. Okay, I saw the first comment of Imran Khan. Academic writing is evidence-based presentation, not learning. Ibrarullah, please correct your comment. Academic writing is evidence-based presentation. Okay, evidence-based, it is one word with hyphen, with dash. This is called compound adjective. Compound adjective. Evidence-based, it is one word. These are not two words. Writing is a very difficult thing. We have to be very careful. So everybody write again. Academic writing is evidence-based presentation. Evidence-based, it is one word. This is called compound adjective. Compound adjective is one word, but there is a hyphen or dash. As Imran Khan has written, academic writing is evidence-based presentation. Now, question arises that
Where from we get evidence? Where from we get evidence? अब एविडेंस कहाँ से आएगा? So we have, please make another comment. Where from I can get evidence? Where from I can get evidence? Where from I can get evidence? So can you answer where from I can get evidence? असर जट प्लीज, ये हम राइटिंग कर रहे हैं और ग्रामेटिकली करेक्ट राइटिंग कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के आखिर में सवालिया निशान होता है। राइटर जो होता है वो बहुत होश और हवास में होता है। आप हवा में राइटिंग नहीं कर सकते, आपका एक एक लफ्ज ठीक होना चाहिए, वरना वो राइटिंग नहीं होती। राइटिंग मस्ट बी ग्रामेटिकली करेक्ट। कॉन्शियसनेस, शऊर, यू मस्ट बी अलाइव, यू मस्ट नॉट बी डेड, यू मस्ट बी अवेक, अवेयर। जब भी आप राइटिंग करते हैं तो आपको जागा हुआ इंसान होना चाहिए, मरा हुआ इंसान नहीं। So Imran Khan says that you can get from newspapers, books, articles, research, newspapers, journals, books, Abdul Ghaffar. So from where we can get evidence? We get evidence from data and its analysis. Please make another comment. I get evidence from data and its analysis. We get data. We get evidence from data and its analysis. So please write, I get evidence from data and its analysis. Everybody, please write quickly. This is a writing class, so you have to write. ये listening class नहीं है, writing class है. So I get evidence from data and its analysis. For example, we have the data about the economic problems of Pakistan. So please write the data, just the rough data. पाकिस्तान के जो इक़्तिसादी मसाइल है, माशी मसाइल है, जिसमें पूरी दुनिया हर बंदा बात कर रहा है, तो आपके पास क्या डेटा है? प्लीज प्रेजेंट योर डेटा। आज मैंने आपको नोट्स दिए हैं, प्लीज क्लास से पहले नोट्स पढ़ा करें। हमारा क्लास जो है बेसिकली नोट्स ज्यादा जरूरी है क्लास से। क्लास से नोट्स पढ़ना ज्यादा जरूरी है। आप नोट्स पढ़े बेशक क्लास अटेंड ना करें। So what data you have about the economy of Pakistan? What data you have? और फिर उसके एनालिसिस हम कैसे करेंगे? This is our task.
When we talk about the economy of Pakistan and its economic problems, what data you have? सिर्फ data लेके outlines 1 2 3. छोड़ो रेड द नोट्स को. अब उस नोट से या एम आपके पास क्या डेटा है? रफ डेटा लेके. डेटा मीन्स स्टेटिस्टिक्स, एविडेंस. हाँ जी, हरी प्लीज अपने नोट्स पढ़े हैं. पाकिस्तान के इक़्तिसादी मसाइल है, माशी मसाइल है, क्या क्या मसाइल है, उसके बारे में क्या डेटा है आपके पास, क्या स्टैटिस्टिक्स है. जनरल देखिए, अभी लिखना हमने शुरू नहीं किया. वी आर ओनली कलेक्टिंग द डेटा. This is writing skills class, so please I need your cooperation. इसलिए मैं नहीं बोलूँगा, आप लोगों ने ज़्यादा काम करना है. मैं आराम से चाय पीऊँगा. Economic indicators. Unemployment rate is at 10%. Poverty rate is 37%. FDI is at lowest ever. कितना FDI है? How much is the FDI? पाकिस्तान इस 22 नहीं होता ना, पाकिस्तान इस 22nd होता है. 22nd 22 और 22वां में फर्क है. अब्दुल गफ्फार ने को डेटा दिया. FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी रेट, और क्या डेटा है आप लोगों के पास? भी बस नारे लगाते हो जी, महंगाई है, ये है, वो है. मैंने आप लोगों से राइटिंग करानी है, तो पहले क्लास से पहले पढ़ा करो. एक चीज तुम्हें याद है, 22nd इन टर्म्स ऑफ PPP. और क्या है? PPP मीन्स परचेज पावर पैरिटी. पाकिस्तान के इंपोर्ट्स कितने हैं, एक्सपोर्ट्स कितने हैं, बजट डेफिसिट कितना है. एक अब्दुल गफ्फार जो है वो लिख रहा है, बाकी सारे खामोश है. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, रिजर्व नहीं. अब्दुल गफ्फार तुम ग्रामर से वो खाओगे, मार खाओगे. जब हमने आर लिखा है, तुम्हारे आंखें ये नहीं देख रही कि आर है, तो इसके साथ प्लूरल होगा. ह्यूज पॉपुलेशन, एनर्जी क्राइसिस, लेस एक्सपोर्ट. ये ठीक है, ये तो प्रॉब्लम्स है, लेकिन डेटा, रियल कॉन्क्रीट डेटा, स्टैटिस्टिक्स. एनर्जी क्या क्राइसिस है, पॉपुलेशन कितनी है, कितनी होनी चाहिए, एक्सपोर्ट्स कितने हैं, इंपोर्ट्स कितने हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स. यार कब एकेडमिक राइटर बनेंगे यार? कंट्रीब्यूट्स यानी कि एक दफा कर दिया, खत्म हो गया. पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस.
एग्रीकल्चर का ए कैपिटल, द एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 20%, 20% नहीं होता। हक हैरान बंदा हो जाता है यार, एक सिंपल सा सेंटेंस आप लोगों से नहीं लिखा जाता यार। गूगल करो, कोई आपके पास कोई कंप्यूटर नहीं है, गूगल करो, मोबाइल उठाओ, लिखो लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा पाकिस्तान। पाकिस्तान का इकोनॉमिक डेटा क्या है? $240 million, which is 5th largest country of the world in terms of population. Population is 240 million and Pakistan is 5th largest country. Which is 5th नहीं होता, which is 5th अजीब लग रहा है। कोई चीटिंग वीटिंग नहीं है, लर्निंग है, ये कोई इम्तिहान तो आपका नहीं हो रहा। आपको आता है मेमोरी से लिखो, नहीं आता तो कंप्यूटर से लिखो, मोबाइल से लिखो, गूगल से लिखो। क्यों दिमाग में अपने खुद ही फैसले करते हो? चीटिंग। अब ये डेटा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स किधर है और फिर इसका एनालिसिस हम कैसे करेंगे? Its GDP of last fiscal year was 0.42%. अब ये पता नहीं किस सोर्स से आप बात कर रहे हैं। 0.42%। आप जो है ना, मेहरबानी करें, इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान उठाए, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। आज आप सोने से पहले जो है, प्लीज राइट अ कमेंट, एक कमेंट लिखे, I will sleep when I will read the latest economic survey of Pakistan. या गूगल करें फाइनेंस डिवीजन, पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे। तो जो 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे है, उसको आपने रट्टा लगाना है, उसको पक्का करना है। एक दफा आपके पास डेटा आएगा, फैक्ट्स आएंगे, फिर आप उसके एनालिसिस कर सकते हैं। अब अगर डेटा नहीं है तो आप क्या एनालिसिस करोगे? फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना मोबाइल उठाता हूं, ठीक है, इसमें देखता हूं पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? डॉलर्स का प्रॉब्लम है, डॉलर्स, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि भाई इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स कितने हैं। मैं लिखता हूं गूगल में इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। ये मैं लिखता हूँ, या 2022-2023 लिखता हूँ इसमें। आप लिखिए, अपने मोबाइल में लिखिए। क्लास में आपके पास दो मोबाइल होने चाहिए। तो एक्सपोर्ट्स हमारे कितने हैं? अराउंड 28 मिलियन, while imports are 72 million. 72 million.
ठीक है, अब ये सिंपल आपका डेटा है आपके पास। टोटल एक्सपोर्ट्स $28 मिलियन, टोटल इंपोर्ट्स $72 मिलियन। नाउ यू डू एनालिसिस, इसी से आप एनालिसिस करते हैं। और इंपोर्ट्स आर मोर देन और एक्सपोर्ट्स। पाकिस्तान इंपोर्ट्स मोर देन इट एक्सपोर्ट्स। अभी हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तज्जिया कर रहे हैं। देखिए ना, कोई खबर देते हैं ना, फिर रात को ये टीवी वाले बैठे होते हैं, उस पर तज्जिया करते हैं, गपशप लगाते हैं। सो पाकिस्तान इंपोर्ट्स आर मोर देन डबल ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स, मोर देन डबल ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स। हमारी इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से डबल है। सो ऑटोमेटिकली देयर विल बी फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट क्या है? तिजारती खसारा, फिस्कल माली खसारा, सॉरी दिस इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट। अभी इमरान खान ने मुझे गलती कराई मुझसे। अब ये डेटा बड़ा जरूरी चीज है, ठीक है ना। फिस्कल डेफिसिट इज द गैप बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर विच वी कवर इन बजट, जिसको हम बजट में कवर करते हैं। वन इज ट्रेड डेफिसिट and the other is fiscal deficit. Please write it as a comment. I should know the data about trade deficit, which is also called current account deficit. Current account deficit and fiscal deficit, which is budgetary deficit. अब ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, एक पाकिस्तान अंदर है, एक पाकिस्तान बाहर है। सो इनसाइड पाकिस्तान विच इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज आवर फिस्कल बजट, दैट इज बजटरी डेफिसिट। जो बजट में खसारा होता है, जो बजट में खसारा होता है उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। बजट में खसारा क्या है? लेस रेवेन्यू एंड मोर एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का मतलब क्या है? इनकम, ठीक है। पाकिस्तान कितना कमाता है अंदर, पाकिस्तान के अंदर कितना कमाते हैं पाकिस्तान कहां से कमाता है? Where from Pakistan earns? Pakistan earns from taxes. पाकिस्तान जो है वो टैक्सेस से कमाता है। The main revenue source is taxes. आप टूथपेस्ट खरीदते हैं, टूथपेस्ट का जो कीमत है वो 100 रुपए है, दुकानदार आपको 120 रुपए का देता है। ये जो 20 रुपए है ये टैक्स है। Tax, this tax is called value added tax, VAT. तो ये जो 100 रुपए है ये दुकानदार के पास जाते हैं, और जो 20 रुपए है वो हुकूमत के पास जाते हैं। हुकूमत इन टैक्सेस से अपना सिस्टम चलाता है, लोगों को तनख्वाही देता है, रोड बनाता है, प्रोजेक्ट्स करते हैं। हुकूमत और जगहों से भी पैसे कमाता है, लेकिन जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है, SOE, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, मतलब PIA है, स्टील मिल है, लेकिन वो पहले से खसारे में है। वो हुकूमत को कुछ नहीं दे रहे, वो कहते हैं हुकूमत को कि हम पे कुछ और लगाओ। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। तो जब हुकूमत ने कोई कारोबार
फायदे में है, लोग टैक्सेस भी कम देते हैं, तो हुकूमत क्या करे? हुकूमत कैसे चलाएगा अपना निज़ाम? लोन्स, कर्जे लेगा। आपके घर का खर्चा जो है वो 10,000 रुपये है और आपका इनकम जो है वो 5,000 है, तो ये 5,000 का खसारा कहाँ से पूरा करोगे? कर्जा लोगे। IMF कहता है कि भाई रीस्ट्रक्चरिंग करो, अपने सिस्टम को ठीक बनाओ। रीस्ट्रक्चरिंग उसको कहते हैं। कर्जों के बजाय अपना इनकम बढ़ाओ ताकि आप खसारे में रहें। तो ये जो चीज है, दिस इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट। ठीक है, इसका तरीका यह है कि टैक्सेस हुकूमत ज्यादा बढ़ाए, लोग बिजली चोरी ना करें, लोग गैस को चोरी ना करें, और हुकूमत का जो खर्चा होता है वो हुकूमत को मिला कर फिर हुकूमत चलेगी ना। ये कोई जज्बात तो नहीं है कि जी नारे लगाएंगे, हम बिजली का बिल जलाएंगे। बिजली के बिल जलाने से बिजली की कीमतें कम नहीं होती। बिजली जब चोरी खत्म होगी तो फिर बिजली जो है उससे खर्चा, उससे इनकम आएगा, हुकूमत उसको चलाएगी। हुकूमत का मिसाल एक कॉन्ट्रैक्टर है। जो डेवलप कंट्रीज है उसमें लोग खुद हुकूमत को मिन्नतें करते हैं कि हमसे टैक्स ले लो। हुकूमत सिर्फ एक ठेकेदार है। ठीक है ना, आपके गांव में एक बंदा ठेका लेता है, जी मैं आपके गांव का ख्याल रखूंगा, आपके गांव का रोड बनाऊंगा, पुलिस रखूंगा, सिक्योरिटी करूंगा, मुझे इतने पैसे दे दो। हम देते हैं, हम हुकूमत को क्यों नहीं देते? सो दिस अंडरस्टैंडिंग इज फिस्कल डेफिसिट। अब हम बाहर की दुनिया में जाते हैं, विच इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो देन वी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हम एक्सपोर्ट करते हैं राइस, टेक्सटाइल्स, स्पोर्ट्स गुड्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वी एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड एंड वी गेट डॉलर्स, बट वी import more than we export। 72,000 डॉलर हम इंपोर्ट करते हैं, 72 मिलियन, और 28 मिलियन जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो फिर खसारे में। So this is economics. Please study on economics. These are the basics of economics. I have given you notes. Study Pakistan survey, latest economic survey Pakistan. Study the last budget. Budget को study करें. So you will be having data, and then you analyze the data and you present your arguments. So you become academic writer. Now I have given you another example. एक मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था आज नोट्स में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। दूसरा एग्जाम्पल क्या था? एनीबॉडी रिमेंबर्स? What was the second example? Here are no standard products to be exported. To be exported. So what was the second example? The second example for today academic writing was what is life and what is the purpose of life. This was the second example in today's notes. अब कम से कम क्लास पढ़ते हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या है, हमने क्या, आज सर ने क्या टॉपिक दिया है, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ये भी नहीं पढ़ते कि आज टॉपिक क्या है, ऐसे बस आके बैठ जाते हैं। So the second topic is that what is life and what is its purpose. जिंदगी क्या है और इसका मकसद क्या है? So this is an interesting academic topic. I have given you very good notes, excellent notes. इसमें मैंने कुछ किताबें भी दी है आपको। अगर आप पूरी किताब नहीं पढ़ सकते तो उसको गूगल में करें कि उस किताब का समरी क्या है। So please for next time
before you sleep today or maybe tomorrow, the books that I have given you for the purpose of life, कि ज़िंदगी का मकसद जो है जिन किताबों में है उसके नाम मैंने आज के नोट्स में आपको दिए हैं. तो गूगल में लिखे समरी ऑफ मिथ ऑफ सिसिफस, जो अल्बर्ट कैमू की किताब है. अल्बर्ट कैमू की जो बुक है उसके समरी पढ़े. सिर्फ गूगल में समरी लिखे, समरी ऑफ बुक का नाम लिखे तो वो आपके पास समरी आ जाएगी. आप समरी पढ़े, क्योंकि ये जो 5-6 किताब के नाम मैंने आपको दिए हैं ये सारी किताबें इसी टॉपिक पे हैं, पर्पस ऑफ लाइफ पे. एंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द फिलॉसफी ऑफ existentialism and the psychology of existential therapy. Please write a comment. ये academic writing आप करते हैं. Academic writing means that you are writing seriously, you are using terms, terminology, technical language. So the purpose of life, the topic of the purpose of life is related to the philosophy of existentialism and the psychology of existential therapy. Yes, I have given you the notes, so there may be personal pronoun, but that is only basically that is data for you. That is data. You have to analyze it academically and remove pronouns. जहाँ जहाँ pronoun है तो उसको remove करें. Convert that into passive voice. इसको passive voice में convert करें, so automatically it will be academic. The notes are basically notes. It is for data. Then you have to analyze it, and then you have to convert it into academic writing. So the purpose of life, the topic of purpose of life is related to the philosophy of existentialism and the psychology of existential therapy. So those people who are knowledgeable, those people who are conscious, they go through the process of existential crisis. Existential crisis. जो सोच वाले लोग होते हैं, जो थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो वो ज़िंदगी में एक स्टेज से गुजरते हैं और उसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस. कि मैं क्यों मौजूद हूँ, मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा. ये क्वेश्चंस हर तालीम याफ्ता बंदे को आ जाते हैं. तो इसका जवाब आपको मिलता है एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी में. और एग्जिस्टेंशियल थेरेपी जो है दैट इज साइकोलॉजी. बिकॉज फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी दे वर्क टुगेदर. Psychology is basically evolved from philosophy. तो ये जो साइकोलॉजी है ये फिलॉसफी से बनी है. Aristotle was the first philosopher and also psychologist. जो अरस्तु था वो साइकोलॉजिस्ट भी था और फिलॉसफर भी था. Later on, psychology was evolved into a different phase. तो अगर एक बंदी को नफ्सियाती मरज है तो उसका एक इलाज जो है दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल थेरेपी. साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, उसको कहता है कि जी तुम्हें किस चीज़ में मज़ा आता है, तुम क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप खुश रहते हैं. तो साइकोलॉजिस्ट डिस्कस करके उसका वो निकाल लेता है. तो इसी तरीके से उस बंदे का थेरेपी का मतलब है ट्रीटमेंट, इलाज, उसका इलाज हो जाता है, उसको अपनी जिंदगी का मकसद मिल जाता है. ही और शी बिकम्स आर्टिस्ट, राइटर, थिंकर, साइंटिस्ट,
मे बी इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेस पर्सन, फार्मर, एग्रीकल्चरिस्ट। तो जब उसको अपनी ज़िंदगी का लाइन मिल जाती है तो उसके तमाम ज़हनी मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। ओके, नाउ व्हाट इज सैडिज्म? सैडिज्म इज अ साइकोपैथी, psychopathological condition. Psychopathy means P-S-Y-C-H-O-P-A-T-H-Y, psychopathy, नफ्सियाती बीमारी। When you enjoy torturing others, giving pain to others। ठीक है ना, हमारे स्वाद का एक बादशाह था, तो वो जब घोड़े निकालता था तो कहता था कि घोड़ों के नीचे जो है छोटी छोटी चूजे रखे, चिकन। जब घोड़े का पाँव चिकन पे पड़ता था तो चिकन चीखता था, तो कह रहे कि मुझे इसकी चीखने में मजा आता है। सो दिस इज सैडिज्म। सैडिज्म, टू एंजॉय टॉर्चरिंग अदर्स, टू एंजॉय गिविंग पेन टू अदर्स। दूसरे लोगों को दर्द देते हुए आपको मजा आता है। और इसका जो और है दैट इज कॉल्ड मेसोकिज्म। मेसोकिज्म, MASOCHISM। मेसोकिज्म मीन्स एंजॉइंग one's own torture. You torture yourself and you enjoy yourself. मेसोकिज्म। सैडिज्म में दूसरों को तकलीफ देते हैं, एंजॉय करते हैं, और मेसोकिज्म में आप अपने आप को तकलीफ देते हैं और एंजॉय करते हैं। बहुत से लोग अपने देखा हर वक्त फरियाद करते रहते हैं, हर वक्त कोसते रहते हैं, अपने आप को मारते रहते हैं। ठीक है, तो अपने आप को तकलीफ में देखो, उनको मजा आता है। सो दैट इज मेसोकिज्म। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज एकेडमिक डिस्कशन। Academic discussion. So I will request you that before you sleep, read the notes, do your own research, and write at least one paragraph on economic problems of Pakistan and purpose of life. Purpose of life. ये जो दो टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं, इसके लिए मैंने आपको डेटा भी दिया है। नोट्स, आज के जो नोट्स है उसमें इसी ग्रुप में नोट्स मौजूद है, तो उन नोट्स को पढ़ें, थोड़ा सा अपना रिसर्च करें, थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाएं, और उसमें एक एक पैराग्राफ लिख के कम से कम 2-3 भी लिख सकते हैं, तो वो आपका एकेडमिक राइटिंग होगा। एकेडमिक राइटिंग इज एविडेंस बेस्ड प्रेजेंटेशन। उसमें स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स, एनालिसिस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी प्लेन राइटिंग। ये प्लेन राइटिंग नहीं है। It is not just writing. That is academic writing. Academic writing means evidence-based presentation. Where from you can get evidence? You get evidence from data, and then you do its analysis, and then it becomes academic writing. अब facts and figures जमा करते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में आपको बजट का पता होना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे का, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स का, GDP का, ये जो बेसिक्स डेटा है ये आपके पास होना चाहिए। फिर आप उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस किसको कहते हैं? हमारे एक्सपोर्ट्स अगर इंपोर्ट से कम है, सो देयर विल बी करंट अकाउंट डेफिसिट। जिस अकाउंट में गवर्नमेंट पैसे रखता है, ये जो एक्सचेंज, ये जो रिजर्व है हमारे, डॉलर्स जहाँ रखे जाते हैं, उसको करंट अकाउंट कहते हैं। तो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये है कि उस अकाउंट में जो डॉलर का अकाउंट है, एक तो हमारे पैसों का अकाउंट है, जो रुपीस का अकाउंट है। रुपीस के अकाउंट को जो है उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। वो हमारा बजट का खसारा है। और जिस अकाउंट में डॉलर्स होते हैं उसको करंट अकाउंट कहते हैं, उसको ट्रेड डिफिसिट भी कहते हैं, तिजारती खसारा। तो जाहिर है कि आपके इंपोर्ट्स ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, तो आपको तिजारती खसारा होगा। योर करंट अकाउंट विल बी इन
डेफिसिट। तो जब हम ये कंक्लूजन निकालते हैं, पहले हम डेटा लेते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, फिर नतीजा निकालते हैं। तो ये जो नतीजा निकालना है, दिस इज डेटा एनालिसिस। हम हवा में बात नहीं करते, हम बाकायदा शहादत देते हैं, गवाही देते हैं, सबूत देते हैं। सबूत की बुनियाद पे जो लिखना है उसको एकेडमिक राइटिंग कहते हैं। अगर ये चीज़ आपको आ गई तो आप एग्जाम के टॉपर होंगे, फिर आप डॉन में राइटर होंगे, आप ब्लॉगर होंगे, कंटेंट राइटर होंगे, आप एग्जाम को टॉप करोगे। एग्जामिनर आपसे सिर्फ ये चाहता है कि जो तुम बात करते हो ना उसका सबूत भी दिया करो। ओ जी पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम बेहतर होना चाहिए, ओ जी पाकिस्तान की इक़्तिसादी निज़ाम सही होना चाहिए, पाकिस्तान में महंगाई ख़त्म होनी चाहिए। तो ये एकेडमिक राइटिंग नहीं है, ये आपके ख्वाहिशात है। एकेडमिक राइटिंग ये है कि महंगाई क्यों है, इन्फ्लेशन क्यों है, इन्फ्लेशन का रेट क्या है, और फिर इन्फ्लेशन का सॉल्यूशंस क्या है। तो वो एकेडमिक राइटिंग है। ये जज्बाती राइटिंग नहीं होती, ये आपके ख्वाहिशात नहीं होते, ये दो जब दो मसाइल विचार होता है, ये साइंटिफिक राइटिंग होती है। So I hope you got the message. If you have any question, please ask. Otherwise, we will be going to the Safe IR classroom, where we are discussing contemporary issues, current issues, and which also you read for academic writing, for essay writing, for Pakistan affairs writing, current affairs writing. Please start reading academically. Please start reading very, very serious sources. अब ये जो हमारा कोर्स है इस महीने का, तो ये वो नहीं है, नाउन प्रोनाउन वाला कोर्स नहीं है। नाउन प्रोनाउन बहुत हो गया। सो इन दिस कोर्स वी विल बी डूइंग हाई लेवल राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग। जो नए लोग हैं वो इस ग्रुप को पहले से ऊपर से नीचे देख सकते हैं, तो उसमें नाउन प्रोनाउन के लेक्चर्स भी है। लेकिन सारी जिंदगी हम नाउन प्रोनाउन ही करते रहेंगे। सो आई वॉन्ट टू मेक यू एकेडमिक राइटर्स।